again, welcome to Simrana English classes, and in today's session we are studying the poem Fire and Ice in the book First Flight, class 10th. So the poem Fire and Ice is by Robert Frost, and this is about the end of the world. So students, have you ever been taught or told by anyone about the end of the world? Have you ever thought about it, that how the world would end or it would be perish? क्या आपने कभी सुना है या समझा है? Yes, in our religious book or from our elders, we often hear about ending of the world, that the world would go end in this way or in that way. कोई religious book कुछ कहती है, कोई religious book कुछ कहती है. बहुत सारी theories हैं. तो दुनिया का अंत, हम बात करें दुनिया के अंत के बारे में, पोएम भी इसी बारे में है. तो दुनिया का अंत कैसे होना है, क्या होना है, ये इस पोएम में ऐसी ही थ्योरी पोएट भी यहाँ पर कह रहे हैं. सो वी हियर मैनी प्रिडिक्शंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. द पोएट हैज़ रेफर्ड टू आउट ऑफ दैम. फर्स्ट, दैट द वर्ल्ड वुड end or it can be destroyed by the fire, and the second by the ice. So we have two theories about the end of the world here. The poem here, Fire and Ice by Robert Frost. So first I am reading the first extract here. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Second stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So let us see the first extract here. Some say the world will end in fire. What does the poet say here? Two theories about the end of the world. Some believe that the world will end by fire, while some have the faith that it will end in ice. So here fire symbolizes desire and ice symbolizes hatred, coldness. Okay? Desire here means greed, lust, and to be materialistic. Greed for more and more money, wealth, avarice, excessive desire for wealth, that is avarice. There is no end of such desire, it makes one to forget everything. So when one runs after money and forgets her relations, his world comes to an end one day. And excessive desire for money makes one selfish, arrogant, greedy, and cruel. So what do you understand? People have different belief about the destruction of the world. Some say that it will end in fire. Fire, just I have told you, fire यहाँ symbolize करता है desire, excessive desire, avarice, and lust, greediness, materialistic हो जाना. तो ये बातें हैं. यानी फायर वैसे भी आप समझ सकते हैं आग से मतलब है. तो एक ऐसी आग जो हमारे जीवन में होती है जब हम बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ का बहुत लालच करते हैं और पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि हम सब अच्छी जो जीवन की बातें होती हैं उन्हें भूल जाते हैं, और उस रेस में भागते भागते हम इतने ग्रीडी हो जाते हैं कि हम किसी दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते समझते, और इस तरह से हम क्रूअल हो जाते हैं. और जब क्रूएलिटी लाइफ में बहुत बढ़ जाती है, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो एक तरह से वो जीवन का अंत हो जाता है. तो जब दुनिया में ये चीज़, दिस लस्ट, दिस ग्रीड, मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? द वर्ल्ड विल एंड, इट विल पैरिश, कि ये बेकार हो जाएगा, अंत हो जाएगा जीवन का, दुनिया ख़त्म हो जाएगी. So look at the third line.
from what I have tested of desire. From what I have tasted of desire. So here the poet himself says that he favors those who say that the world will be destroyed by this disastrous fire. As people are going to materialistic, human desires are endless. Those who can't control their desire, they go greedy, selfish, they have conflict in their life, and they have become intolerant, they can't bear others. So in this way world will go end. तो पोएट यहाँ पे क्या कहता है कि डिज़ायर्स हम सभी जानते हैं डिज़ायर्स के बारे में. डिज़ायर यानी इच्छाएं, लॉन्गिंग, विश. हम सभी विश करते हैं, इच्छाएं होती हैं हम लाइफ को अच्छा बनाने के लिए. तो जब ये लिमिटेड होती हैं और व्हेन वी कैन कंट्रोल आवर डिज़ायर्स और दैट इज़ फॉर आवर वेलफेयर, एंड व्हेन आवर डिज़ायर्स आर नॉट हार्मिंग अदर्स, व्हेन वी आर नॉट ग्रीडी, तो तब तक ये सब अच्छा रहता है. लेकिन यहाँ पे पोएट कह रहा है कि अगर डिज़ायर्स को जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा. डिज़ायर यहाँ पर क्या है? आग, फायर. ओके, डू वी सी इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट फायर सिंबलाइजेस डिज़ायर, लस्ट, ग्रीड, एवराइज, मेटीरियलिस्टिक हो जाना लोगों का, ये सब चीज़. वेयर आइज सिंबलाइजेस कोल्डनेस, हेट्रेड, ओके, insensitive हो जाना, indifference. In the second stanza, let us see the second stanza. But if it had to perish twice, what does the poet say here? But if it had to perish twice. In the first extract we see that the poet is saying if the world will end in fire. So he is favoring those who have this faith that the world will end with fire, or fire is the symbol of our uncontrolled desires, lust, greed, avarice. Okay, so यहाँ पे वो कह रहा है but if it had to perish twice, but if the world will have to be destroyed twice, अगर दुनिया दो बार समाप्त होनी है, दुनिया का अंत दो बार होना है, I think I know enough of hate. So he knows much about hatred, that hate is an evil and hate can also be the cause of world's destruction, as the fire was in the first stanza. Eyes here stands for hate, coldness, indifference, lack of love. Yes, lack of love. जब हमारे दिल में दूसरों के प्रति सम्मान, प्यार की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम वी स्टार्ट हेटिंग अदर्स, यू नो. सो लैक ऑफ लव मीन्स हेट. जब प्यार की कमी हो जाती है, हम दूसरे से जेलस करने लगते हैं, तो वहाँ पे घृणा पैदा हो जाती है. सो पोएट सेज आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट. सो ही ऑल्सो understands, he also favors the idea of ending the world or destruction of the world with ice, कि बर्फ से, आइस से दुनिया का अंत हो जाएगा. आइस से दुनिया का अंत होने का मतलब है कि इंसान के इमोशंस का ठंडा हो जाना, उसके हार्ट में वो वार्मनेस ना होना, वो फीलिंग्स ना होना दूसरों के लिए. इनडिफरेंट से मतलब होता है उदासीन हो जाना, बिल्कुल कुछ नहीं महसूस करना दूसरों के, इनसेंसिटिव हो जाना. तो हम कब इनफ्रेंस की फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती है, इनसेंसिटिव हो जाते हैं. इनसेंसिटिव महसूस ना करना, यानी अगर किसी को चोट पहुंचती है, किसी का दिल दुखता है या कोई परेशानी में है, तो दूसरों के प्रति क्रूअल हो जाना, काइंड महसूस ना करना. तो ये है कोल्डनेस, एक तरह का ठंडा पड़ जाना, यानी कोई सेंसिटिविटी ना होना हार्ट में और ब्लड में सेंसेशन ना होना, फीलिंग ना. जैसे कहते हैं ना कि कोई गलत बात करता है तो खून खोलना, तो खून खोलना क्या होता है? बिकॉज वी आर सेंसिटिव, वी आर फीलिंग दैट, वी आर हर्ट, इमोशंस आर हर्ट. तो जो भावनाओं को जब ठेस पहुंचती है तो इंसान दूसरे के लिए भी कुछ करता है या अपने लिए आवाज़ उठाता है. लेकिन जब हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं, जब हम हमारे अंदर कोई महसूस ही नहीं करते हम, तो हम किसी के लिए कोई प्यार भी महसूस नहीं करते और
हम बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आइस है उस कोल्डनेस, उस इनसेंसिटिविटी, उस इनडिफरेंस की बात कर रहा है। दैट इज़ लैक ऑफ लव, ड्यू टू लैक ऑफ लव, जो कि प्यार की कमी के कारण, सम्मान की कमी के कारण और जेलस के बढ़ने के कारण हो जाती है। सो वी हैव लैक ऑफ लव, कोल्डनेस एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, यू नो, बट लॉट्स ऑफ हेट। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव लैक ऑफ लव। ये वर्ल्ड बर्फ़ से, आइस से किस तरह से बर्बाद हो सकता है? जब लोगों के बीच में इनसेंसिटिविटी हो जाएगी, एक दूसरे की परेशानियों को महसूस करना बंद कर देंगे, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाएगी। When people become insensitive, there is lack of love, understanding, but what increases? क्या बढ़ जाता है? That is lots of hate, hatred, you know, hatred. नफ़रत बढ़ जाती है, घृणा भर जाती है हमारे दिल में for one another. Ice, that is the ice. Ice that is cold. Hatred, cold hatredness, that is also sufficient for this destruction. So ये ज़रूरी नहीं है कि आग से ही दुनिया ख़त्म हो सकती है। अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, लालच और इनसेंसिटिविटी, यानी ठंडे पड़ जाना, चीज़ों को महसूस ना करना, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं। इमोशंस, प्यार और रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाना, एक दूसरे के प्रति सम्मान, तो तब क्या हो सकता है? दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो दोनों तरीके से दुनिया ख़त्म हो सकती है। सो ही सेज दैट, लास्ट लाइन में, एंड वुड सफाइस। सफाइस से मतलब है यहाँ पर सफिशिएंट, कि बर्फ़ भी पर्याप्त है, आइस भी पर्याप्त है। और वाइस क्या है? वाइस क्या है? कोल्डनेस, इनडिफरेंट एटीट्यूड, नॉट फीलिंग अदर्स प्रॉब्लम्स, पेन, emotions, hurting others' feelings, okay, insensitivity which is called. So your coldness is that. तो जब इससे भी, इस कोल्डनेस से भी, इनसेंसिटिविटी से भी दुनिया का अंत हो सकता है, ये भी पर्याप्त है दुनिया का अंत करने के लिए। सो यू नो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, we run after money, we become selfish, we are jealous of others and we start hating, we become as cold as ice, we don't have feelings, love and understanding and tolerance for others, so that becomes the end of the world. So poet is presenting here two theories, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया। तो ये क्या हमें दिखा रहा है? फायर, फायर इज़ द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन लस्ट, ग्रीड, ऑल दीज आर द ईवल्स इन ह्यूमन। बुराइयाँ होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं। और कोल्डनेस, दिस कोल्डनेस, आइस की जो बात हो रही है कि हम जो लोग महसूस नहीं करते हैं, या ये भी महसूस ना करना भी दुनिया को अंत करने के बराबर है। सो कोल्डनेस मेक्स not to feel others, sorrow, problems. So this indifferent attitude and insensitivity is the ice or is the coldness here. एम स्कीम तो लास्ट पोएम में मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की थी, तो सेम ही है। जैसे आप फिर से, अगर आपने वो नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन आप शो हो जाएगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट poem when I explained you dust of snow, I had taught you the rhyming scheme, okay? तो इसमें यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे what is the rhyme scheme of the poem, how does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वैसे सिंपल है, ये है A B A A in first extract, you see, in first extract। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पर है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो फायर को हम ए दे देंगे, ओके, एंड सम से इन आइस, तो आइस विल बी बी, क्योंकि दोनों राइम नहीं कर रहे हैं वर्ड फायर एंड आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ
desire. So it is rhyming with fire, desire. So this will be A, क्योंकि A से मैच कर रहा है ऊपर ये. Okay. So next line है I hold with those who favor fire. Once again you see A. So this is A, B, A, A. Okay. See the next extract. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. So first line में आप देखिए but if it had to perish twice, the word is twice. Last word लेते हैं हम. I know, I think I know enough of hate. तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम A B A ऊपर दे चुके हैं, तो ये होता है C twice. Line C. I think I know enough of hate D, because it is not matching. No rhyme is here in the between the word twice and hate. They are not the rhyming words. To say that for destruction eyes. So we will write here C. क्योंकि why? Twice and eyes. आप इसे बोलिए तो आप देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन सेम है. Twice eyes, सेम साउंड निकल रही है. सो हेयर इज rhyming scheme. These words are rhyming. Twice eyes is also great. So it is matching with hate. Hate great. So write here D. Okay. Then last and would suffice. So twice eyes and suffice. So this is C. देखिए twice eyes, suffice, hate, great. So this is the rhyming scheme here. First question है, there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? So you have to write answer in your own word. तो सेकेंड क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप उसको फिर से सुन लीजिए और आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा. फर्स्ट में आपको अपने व्यूज़ देना है. तो क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं, सो इस पर थोड़ा सा आप वर्क करिए और फिर आप इसको कर सकते हैं. तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए हैं इस समय. तो अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, वैसे तो आप भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द समरी ऑफ द पोएम, बिकॉज समटाइम्स यू कांट understand the symbolic meaning of fire and ice. So what you have to do for that, you try to write the summary. तो आप इसको सुनिए, जो व्यूज़ जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आपको उसको बार बार सुनिए और फिर समरी लिखने की कोशिश करिए. मैंने उसमें आपको काफ़ी क्लियर बताया है कि फायर किसको सिम्बलाइज कर रहा है. फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिज़ायर, लस्ट, एंगर, ग्रीड. ओके. और मटीरियलिस्टिक हो जाना. मटीरियलिस्टिक हो जाने से मतलब होता है कि दुनियावी जो चीज़ें हैं, ये धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागना या इनके पीछे आप कुछ गलत करने लगें, वो चीज़ कहलाती है मटीरियलिस्टिक होना. वैसे तो दुनिया में जब रहते हैं तो सभी लोग ये सब चाहते हैं अपने लिए, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा लालच जब हमारे अंदर आ जाता है, जो चीज़ हमें मिल जाती है फिर हम उससे ज़्यादा और सोचने लगते हैं. तो फायर से मतलब यहाँ पर है, ये है. ओके. सो फायर से कौन कौन सी चीज़ अभी मैंने आपको बता दी. फायर स्टैंड्स फॉर, तो यही जो क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ फायर स्टैंड्स फॉर, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब यहाँ आंसर बोल रहे होंगे. और आंसर है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट, एवराइस, materialism, cruelty. Okay. Ice stands for coldness, insensitivity, indifferent behavior, attitude. Okay. Lack of love, lack of understanding for others, not feeling others problems, pain. ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं. तो यहाँ बुक में भी आपको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में
वहाँ से भी आप देख सकते हैं. For frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. So just I have told the answer of this. Okay? इसमें है, आप ये देख सकते हैं. जो वर्ड मैंने नहीं यहाँ पर बोले, एक्सप्लेनेशन में आप सुन सकते हैं. यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए. Fire stands for greed, avarice, lust, conflict, fury, intolerance. The words given in the box. And ice stands for cruelty, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, hatred. Okay? So here we have completed the explanation of the poem, but one thing is very important, that you must know, understand your own views about this, you know, your own idea about the poem. Okay, how do you understand it, है ना, your own response. और सेल्फ इंटरप्रिटेशन, सेल्फ इंटरप्रेट करना कि आप उसे कैसे समझते हैं, तो वो अच्छा है आपको अपने वर्ड्स में लिखना कि आप कैसे समझते हैं कि भाई यहाँ पे दुनिया के अंत की बात हो रही है और दो ईवल्स हैं, दो बुराइयाँ हैं जो दी गई हैं, तो आप उसे कैसे समझ रहे हैं. और सिर्फ इतना नहीं कि आपने पोएम को समझ लिया, because the poem is given in your 10th class syllabus, so you have to prepare for your board exam, you have to get good marks. This much is not enough. बच्चों, ये पोएम जो आपको यहाँ पे दी जाती है, ये एक बहुत ही इसका एजुकेटिव वैल्यू होती है. ऐसा वाला एजुकेटिव वैल्यू नहीं कि आपके सिलेबस में और आपको इसको करेक्ट आंसर लिख के इसके मार्क्स ले लेने हैं. मेरा मतलब है कि आपको अपने लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपको इतना लालची नहीं हो जाना है कि जिस लालच की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो. ओके, तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत है, या आपके सामने कोई कर रहा है और आप जानते हैं, तो आपकी पूरी ड्यूटी बनती है कि आप उसे चेक करें. तो जब हम वास्तव में इस पोएम में जो दिया है उसे अपने जीवन में लागू करने लगते हैं कि हमने फायर को कितनी जगह दे रखी है अपने लाइफ में, अपने हार्ट में. डू यू हैव दैट फायर इन योर हार्ट? आपको क्या करना है? यू हैव टू एक्सटिंग्विश दैट फायर. उस वाली आग को जो नफ़रत फैला रही है या आपको डिज़ायर्स को अनकंट्रोल्ड कर रही है, तो उसे बुझा लेना है. या ऐसी कोल्डनेस, ऐसी आइस जो आपको ऐसा बना रही है कि आप दूसरे के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं. जिसे कहते हैं ना, आपको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको अपना देखना है. जैसे कहते, अच्छी बात होती है कि लोगों के झगड़े में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये ऐसा भी अच्छा नहीं होता है कि आपके बराबर में कोई गलत कर रहा है और आप उस अत्याचार को होते देख रहे हो, या आप महसूस नहीं कर रहे किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वजह से हो रही है वो प्रॉब्लम. तो बच्चों, मैं जो चाह रही हूँ वो पोएम में जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं वो तो आप कर ही लेंगे. मैंने आपको समझा दिया, आपको कॉपी में भी प्रिपेयर कर लेंगे और फिर आप एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे पा लेंगे. लेकिन ये डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये जो पोएम्स हैं, इनको लाइफ में अपने साथ रखिए, इनके मीनिंग को, यू नो. तो ये बहुत मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल पोएम्स हैं, इनको समझिए और आगे वो मत करिए जो यहाँ पे पोएट आपसे कह रहे हैं ना करने के लिए. तो तब वास्तव में आप इस पढ़ाई का मतलब ये होता है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ मार्क्स ले लेना नहीं है, उसको अपने जीवन में लागू करना है. और आपने अगर जीवन में उसे लागू कर लिया तो समझिए आपने बहुत बड़ा बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया. जो पोएम मैंने आपको समझाई है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आपको समझ में आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने और दूसरे दोस्तों के साथ जो आप ही की तरह 10th स्टैंडर्ड में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तैयारी करते रहिएगा और आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है, हमेशा आपके साथ है कि आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आएँ और आप अच्छे से अपने गोल्स को फुलफ़िल करें. जो आप चाहते हैं ईश्वर आपको दे. ओके, बाय, सी यू in the next video. Don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon and like the video.